जी पास्टर जी, थैंक यू सो मच। तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम रात बेचैनियां ते दिन बदनामी सदा दे आराम दियां गल्लां, 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 सदा दे आराम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। दुखां दी दोपहर जदों आण के जलांदी ए, अदन दे बाग दी सवेर याद आंदी ए, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, 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 ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू, जदों असी उड़ जाना नासरी दे शहर नू। आखिर सलाम दियां गल्लां, आखिरी सलाम दियां गल्लां, आखिरी सलाम दियां गल्लां, आखिरी सलाम दियां गल्लां, आखिरी सलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां।
Thank you so much عمر بھائی, ونڈرفل ورشپ آپ نے کی. یقیناً یسوع مسیح کے مقدس کلام کی باتیں جب ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہماری زندگی میں نئی جان آتی ہے, نئی طاقت آتی ہے, نئی قوت آتی ہے. ہم یسوع مسیح کے مقدس کلام کی باتوں کو جب اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہم اور زیادہ بابرکت ہوتے ہیں. ہماری زندگی جب نڈھال ہوئی ہوتی ہے تو اس کے کلام کی باتوں سے ہماری زندگی میں عقب جیسا نیا زور آ جاتا ہے. ہاللیلویہ, تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ابھی ہمارے درمیان سسٹر نگین ہے. سسٹر نگین کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی ورشپ کریں گے. Thank you so much, Pastor Ji. Good evening, everyone. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਗਮ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਪਾਣਗੇ. ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਪਾਣਗੇ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਗਮ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ. ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਾਲੇ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬੂਹੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ. ਆਮੀਨ. آمین آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ بیٹی نگین. خداوند بہت برکت دے آپ کو. یسوع تیری آرادھنا سارے بندھناں نو توڑ دیندی ہے. یقیناً جب ہم خداوند کی آرادھنا کرتے ہیں تو ہمارے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. خداوند یسوع ہماری زندگیوں کو سنبھال. آمین. ابھی ہم اپنی عبادت کے اگلا حصہ میں آئیں گے اور ہم خداوند کی میٹھی شری آواز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. سبھی سر خداوند کی تعظیم میں جھکیں.
آج کا مقدس کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہونے والا ہے. ہاللویہ ہاللویہ. اور میں کلام خداوند کی شکر گزاری کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے درمیان خداوند کے خادم پاسٹر ہربنس لال موجود ہیں. پاسٹر جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. اور ہمارے آج کے وائز بھائی ایونجلسٹ گلناز خورشید عالم ہمارے درمیان ہے. پلیز آپ ان کے لیے خداوند کے حضوری میں زندہ خدا کا نیا زور مانگیں، کیونکہ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے اور اپنے خادموں کو آ کے شعلہ بناتا ہے. سو پلیز دعا کریں اور خدا کے خادم کی برکت چاہیں. موسٹ ویلکم. اب ہم اس وقت دعا کریں. سبھی کو جے مسیح کی. دھنیہ واد کرتے ہیں پربھو یسوع مسیح آج کے دن کے لیے. خداوند خدا جو جوم کے وسیلہ سے پربھو ایک بار پھر ملنے کے لیے موقع دیا. خداوند خدا ہم پربھو تیرے لوگوں کے ساتھ مل سکیں، ان کی آواز کو سن سکیں. خداوند خدا یہ آپ کا پیار ہے پربھو. پربھو ہم دھنیہ واد دیتے ہیں پربھو اس شام کے لیے. خداوند اور جو تھوڑے بچے نے پربھو آرادھنا کی ہے پربھو تیری مہما کی ہے. خداوند خدا جو لوگ تھوڑی مہما کر دے خداوند تسی انہوں نے بلیس کر دے. مبارک وہ لوگ ہیں خداوند یسوع مسیح آپ کے وچن میں لکھا ہے جو تیرا وچن لے کر آتے ہیں. خداوند یسوع مسیح تھوڑے داس تھوڑے ہاتھوں میں سونپنا پربھو یسوع مسیح. اپنے داس کو پربھو اپنے آتما دا دکھنا مسا دے. خداوند جب تھوڑا کلام پربھو یسوع مسیح شیئر کریں خداوند خدا بندھن ٹوٹ جائیں پربھو، کیونکہ تھوڑا پوتر وچن دستا ہے پربھو جی تھوڑا وچن آن والی تباہی تو بچاؤندا ہے پربھو. سچ ہے خداوند خدا یہ آپ نے ہمارے لیے پربھو انتظام کیا ہے. خداوند ہم تیرے وچن کو سن سکیں اور جنہیں بھی ہمارے بیچ میں کمی ہے پربھو وہ دور ہو سکے. پربھو انسان اپنے آپ کو نہیں پرکھ سکتا پربھو، لیکن تھوڑا جب وچن ہوتا ہے تو انسان کو پربھو یسوع مسیح ان کے پاپوں کو بتاتا ہے پربھو جی. تو آج پربھو اپنے داس کو پربھو اپنے ہاتھ میں لے اور پربھو یسوع مسیح سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے نوہت پربھو اپنے داس نو مسا کرو پربھو جی. ایک ایک شبد پربھو تواڈے آتما کے دوارا نکلے اور سننے والے آشیش پائیں. پربھو اپنے داس کو بھی بڑے بلس کرنا، اس کی منسٹری کی پرارتھنا کر دے پربھو. بلس کرنا پربھو جو سیوکائی دی ہے پربھو ان کے لیے پرارتھنا کر دے پربھو. ان کی سیوکائی بڑھتی جائے پربھو. تیرا کلام پربھو پھیلتا جائے پربھو جی اور تواڈا نام جلال پائے. یہ پرارتھنا نو مسیح یسوع دے سامت پوتر نام منگدے ہیں. آمین. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی. خدا بہت برکت دے آپ تھینک کو. یو. ونڈرفل پریئر. ابھی آئے ہم اپنی زوردار تالیوں میں آج کے وائز خدا ان کے خادم ایونجلسٹ بھائی گلناز خورشید عالم کو ویلکم کہتے ہیں. سر آپ آئیں اور خدا ان کی میٹھی شری آواز جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے کے ساتھ شیئر. ویلکم. تھینک یو ویری مچ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. تھینک یو ویری مچ. آج کی صبح اکارڈنگ ٹو دا پاکستان ایٹ دا ایوننگ ٹائم میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. اور آج میں نے ایسے ٹاپک کو چنا ہے جس پہ اکثر لوگ انہیں بہت کم سنا ہے یا بہت کم پریچ کیا گیا ہے. تو میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا خوبصورت، یوں تو پیغام خدا کا سارا ہی خوبصورت ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے پلپٹ سے بہت کم بیان کی جاتی ہیں. تو اس کلام کے حصہ کو جو مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان میں ریکارڈ کرتا ہے اس کا 19 باب اس کی 37 ورس سے لے کر 42 ورس تک ہم دیکھیں گے. اس کو سیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور میری درخواست ہے کہ کوئی بھی بہن بیٹی یا میرا بھائی اگر کلام مقدس کی اس تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. In New Testament, the Gospel according to John chapter 19 verse 37 to 42.
कोई बेटी कोई भाई नहीं पढ़ रहा, या मैं खुद ही पढ़ दूं? हेलो जी, अगर नहीं कोई पढ़ रहा तो डोंट वरी, मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ जी, यूहन्ना की ठीक है, ठीक है 19वां बाब और उसकी जी। 37 वर्ष से 42 वर्ष तक। जी, कलाम खुदा में यूं लिखा हुआ है, फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नहीं नजर सर, करेंगे। नहीं सर, 27 37 19 जी बाब अकॉर्डिंग टू यूहन्ना जी, के अंजीली बयान के 19वें बाब की 37 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक। सर जी 37 ही पढ़ रहा हूँ। नहीं 19 आप और बाब कुछ यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 37 आयत पढ़ी है मैंने। जी जी जी, बिल्कुल 37 सही है, सही पढ़ी है। आप चेक कीजिए प्लीज सर। ये फिर एक मिनट मैं देख लूं कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ, ये भी तो हो सकता है। 19 बाब ही है, होल्ड रखिएगा। 19 हाँ 19 बाब है, 37 है। इन बातों के बाद अरमितिया का रहने वाला यूसुफ, ये है 38 आयत है, ठीक है 37 38 नहीं। हाँ 38 हाँ। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुड़ और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ दफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बाइस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद के इस पाक कलाम के पढ़े खोले और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत बख्शे। जमीन और आसमान के खालिक मैं तेरा शुक्र करता हूँ और अपनी तमाम तरखामी और खूबियों के साथ तेरे इन लोगों के सामने खड़ा हूँ, ताकि आज इस लम्हा इस घड़ी तेरे पाक कलाम की इन बातों को जो तेरे कलाम मुकद्दस में रिकॉर्डेड है, जो तेरी प्रेम कहानी है, उसका जिक्र कर सकूं। मुझे आज शाम अपने लोगों के दरमियान, आज सुबह अपने लोगों के दरमियान, इस घड़ी अपने लोगों के दरमियान अपनी अजमत, अपनी शान और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर, ताकि सारा जलाल तुझे पहुंचे। मसीह खुदावंद के कवि कादर और मजबूत नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। गुलनाज, ये आवाजें हैं आपके पीछे। अब अभी मैं दरवाजा बंद करने लगा हूँ, ताकि हाँ, वो ये मैं दरवाजा 1 मिनट होल्ड रखे, मैं दरवाजा बंद कर लूं। जी सर, आप तो नहीं आ रही? जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस टॉपिक पे कफन और दफन के बारे में मसीह खुदावंद की लाश का तो ले लिया, कोई इतना मैंने नहीं सुना लेक्चर कोई भी, और अक्सर हमारी मसनदों में ये लेक्चर होता भी नहीं है। तो मैंने इसकी जरूरत को महसूस किया, तो मैंने चाहा कि आज शाम इस पे कुछ बात की जाए, इस पे कुछ सीखा जाए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए, इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको देखा जाए, और सबसे बढ़कर मसीह खुदावंद की लाइफ में हमें सहाबा तो दिखाई देते हैं, शागिर्द तो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खुफिया शागिर्द हैं, जो मंजर आम पर नहीं है।
उनके पीछे क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पे इसका महल्ले वकू देखते हैं कि ये अरमितिया है क्या चीज, ये कहां है। अक्सर बाइबल मुकद्दस को जब हम देखते हैं तो आखिरी पेज पर नक्शा जात बने हुए हैं। अगर हम उन नक्शा जात को देखें और उन नक्शा जात में एक ऐसा नक्शा भी है जिस पे लिखा हुआ है मसीह खुदावन फिलिस्तीन में उस मौका पे उस वक्त में जो चीजें रिकॉर्ड थी वो आज भी हैं, आज भी वो चीजें दुनिया में हमें दिखाई देती हैं। तो यहां है कि फिलिस्तीन मसीह के जमाना में, कि जब मसीह थे दुनिया में थे, दर्स और तदरीस का काम कर रहे थे, तो उस वक्त जो कंडीशन थी जियोग्राफिकली आज भी वैसी की वैसी है इस अरमितिया शहर की। और मुकद्दस यूसुफ वहां का रहने वाला है। बहर रोम के ऊपर बहुत सारी बंदरगाहें हैं, लेकिन एक ऐसी बंदरगाह है जिसे आज भी वो वही नाम है जो उस वक्त राइज था, याफा। याफा की बंदरगाह से अबाउट 40 माइल के फासले पर यह शहर आबाद था, अरमितिया, जहां का मुकद्दस यूसुफ रहने वाला था। और यह शहर मजहबी एतबार से बहुत मशहूर था, यह मजहबी लोगों की आमाजगाह थी। और इस शहर से बड़े बड़े नामवर उलमाए दीन भी आए, बहुत सारे फकी और फरीसी भी इसी शहर से तल्लक रखते थे, अरमितिया का। तो ये मसीह खुदावंद का एक खुफिया दोस्त है। और एक और भी है, जो 2 लोगों का जिक्र मिलता है लाश रिसीव करने के हवाले से, पिलातूस से दरखास्त करने के हवाले से। लेकिन ये हिस्सा जो है लाश को रिसीव करने का, उसकी तदफीन करने का, मुकद्दस यूसुफ जो अरमितिया शहर का रहने वाला है उसको मिला। और यूसुफ अरमितिया शहर का जो यहूदी काउंसिल थी उसका मेंबर भी था, और बड़ा अप्रोचेबल था, और अमीर तरीन भी था। और इसने जो कब्र अपने लिए खदवाई हुई थी वो नजदीक ही कलवरी के थी। लेकिन अगर हम यहूदी स्ट्रक्चर को देखें तो जिन लोगों को भी, हमारा तो ईमान है और अकीदा है कि मसीह खुदावंद ने हमारी खातिर जान दी, लेकिन जिसको सजाए मौत दी जाती थी, सलीब की अजियत दी जाती थी, सलीब पर जिसको कत्ल किया जाता था, तो ये कत्ल ही होता था। और कातल जो होते थे, मकतूल जो होते थे, कातल को कोई अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। और उनके लिए तरीकाकार ये था यहूदियत में कि उनको इज्तमाई एक खड्डा खोद कर उसमें फेंक दिया जाता था, यानी इस कदर उसकी तज़हीक होती थी। लेकिन यूसुफ जो है, इसने बड़ी कोशिश की और कोशिश करके पिलातूस के सामने हाजिर होता है और उससे मसीह खुदावंद की लाश को लेने के लिए दरख्वास्त करता है। एक और शख्स भी है, उसने भी दरखास्त की, जिसको निकोदीमस कहा गया है। ये अपने फिरके के इतबार से फरीसी था। और 2 ऐसे फिरके हैं यहूदियत में, फकीह और फरीसी, इन पे भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करते थे। फिलहाल हम अरमितिया के यूसुफ पर ही बात करते हैं कि ये उस शहर का रहने वाला था। इसने मसीह खुदावंद की कफन के लिए दरख्वास्त दी, कफन दफन के लिए, और पिलातूस ने उसको इजाजत दे दी। और पिलातूस ने जब इजाजत दी तो मसीह खुदावंद की जस्ते खाकी को लेकर जब वो आता है तो वो कलवरी के नजदीक एक चट्टान थी जिसमें कब्र खोदी हुई थी, जिसमें किसी का कोई आज तक कोई दफन नहीं हुआ था, उसमें रखा। और फिर कब्र का एक स्टाइल था, दरवाजा होता था, और दरवाजे के आगे एक गोल पत्थर, एक पहिया नमा उसके मुंह के आगे रख दिया जाता था। तो तदफीन करने के बाद, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये अमीर शख्स था, और तारीख ये बयान करती है कि मसीह खुदावंद को जो कफन पहनाया गया, जिस कफन में लपेटा गया, प्रिजर्व करने के लिए वो ऊद और मुर्द जो चीजें थी वो रिवाज था। उस रिवाज में उस कफन में दफन करने के बाद मालिश की जाती थी, दफन किया करने के लिए वो उनका एक सिलसिला था।
लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो है, हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि मसीह खुदावंद का जो कफन था वो हमारे इलाके से गया, पाकिस्तान से, सूबा सिंध से गया, और उस कपड़े को संडोन्स कहा जाता था, सिंधी कपड़ा। और ये कपड़ा इतना कॉस्टली और इतना महंगा था कि पूरी रोमन ब्यूरोक्रेसी में बिकता था, और रोमन ब्यूरोक्रेट इस कपड़े को पहनकर अपनी वजाहत से चलते और फिरते थे। और यही कपड़ा पतरस और यूहन्ना ने जब ये कपड़ा पहना हुआ था, लिबास पहना हुआ था, जो हैकल के दरवाजे पर गए, हैकल के अंदर जाने लगे, तो मांगने वाले ने उनकी वजाहत, उसकी क्वालिटी, उसका ड्रेसअप हो गए देखने से उन्होंने इल्तिजा की, उन्होंने कहा कि हमें ये दो। तो उसने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, मसीह खुदावंद के नाम पे उठ और चल फिर। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये पाकिस्तान के सूबा सिंध से, उस वक्त क्योंकि ये हिंदुस्तान था और यहाँ की इंडस्ट्री कॉटन की, बहुत बड़ी कॉटन की इंडस्ट्री थी, और उसका असर हमें पूरे इस रीजन में आज भी अरामी जबान का दिखाई देता है, जो सराइकी जबान में कम से कम 50% अरामिक लैंग्वेज जो इन्वॉल्व है, क्योंकि मसीह खुदावंद की अपनी मादरी जबान भी अरामिक थी। और एक और बड़ी मजे की बात है कि जब उसको रख दिया गया तो मुकद्दस, मैं तो मुकद्दस ही उनको कहूंगा जिसने मसीह खुदावंद की लाश को लिया और अपनी कावश में कामयाब हुआ। और ये मसीह खुदावंद का एक खुफिया दोस्त था, और खुफिया दोस्त अंजीली बयानात में नाम तो उनके नहीं जाहिर हुए, लेकिन हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। बागे गतसमनी जो है उसके लफ्जी मैंने कोलू है, ऑयल प्रेस, उसके अंदर अंगूरों को रौंदने के लिए वो कोलू लगा हुआ था, जिसपे अंगूर कशीद किए जाते थे, उनको रौंदा जाता था, वे मशकिजों में, मटकों में जमा और भरा जाता था। और उसका मालिक जो था वो भी मसीह खुदावंद का सीक्रेट फ्रेंड था, खुफिया दोस्त था। और मसीह खुदावंद जब भी कभी यरूशलेम में दाखिल होते तो उस बाग की, गतसमनी बाग का जो मेन गेट था, उसकी चाबी मसीह खुदावंद के पास होती थी। वो इतना करीबी दोस्त था कि उसने अपनी उस बाग की चाबी मसीह खुदावंद को दी हुई थी कि ये चाबी आपके पास है, आप जब भी यरूशलेम में आए तो यहां अपनी दुआ पर्सनल करने के लिए आप आ सकते हैं। और वो हमें दिखाई भी देता है। फसह का टाइम है, मसीह खुदावंद कहते हैं कि जाओ, एक शख्स सर पे पानी का मटका लेके आ रहा होगा, तो उसके पीछे पीछे जाना, और जिस घर में वो दाखिल हो उस घर के मालिक को कहना कि मुझे बाला खाना चाहिए, उस्ताद ने कहा है, उस्ताद ने आज फसा करनी, उसने कहा तैयार है, उसने उस पूरे बाला खाना को तैयार किया। वो भी मसीह खुदावंद का खुफिया दोस्त था। एक और हमें दिखाई देता है, मसीह खुदावंद ने कहा जाओ, वो बच्चा बंधा हुआ होगा गले का, उसको खोलना, अगर कोई पूछे कभी कौन हो, क्यों चोरी कर रहे हो, क्यों खोल के ले जा रहे हो, तो कहना उस्ताद को इसकी जरूरत है। वो भी खुफिया दोस्त है। और निकोदेमस ये भी खुफिया दोस्त है, लेकिन ये डरता है, आता है और रात के टाइम पे आता है, दिन में डरता है अपनी उस पोस्ट की वजह से। और ये भी यूसुफ जो है ये भी डरा हुआ था, लेकिन क्या, क्योंकि असर रसूख उसका इतना था, क्योंकि यहूदियों में दो ऐसी पावरफुल, एक को सेनेट कहते हैं, एक को पार्लियामेंटेरियन सिस्टम कहते हैं। ये काउंसिल जो थी उनकी सेनेट का दर्जा रखती थी आज के दौर में, और सैनहेड्रिन्स यहूदी सदर अदालत थे जिसके 72 मेंबर्स हुआ करते थे, और जिन पर कमांड फकीहों और फरीसियों की होती थी। तो ये निकोदेमस उसका भी मेंबर था, लेकिन क्या है, क्योंकि मसीह खुदावंद को गद्दारा ने वतन, गद्दारा ने मिल्लत का दर्जा देके कत्ल किया गया, मसलूब किया गया, तो वो अंदर से दोस्त है लेकिन ऊपर से डरता है। आज भी हमारी कंडीशन है, सम टाइम हम कमजोर होते हुए घबरा जाते हैं, डरते हैं, लेकिन ये दोनों शख्स डरे नहीं। लेकिन एक बात है कि इसको लाश नहीं दी गई, लेकिन यूसुफ को दे दी गई।
उसकी वजह क्या कि यूसुफ का बैकग्राउंड तकड़ा है, मालदार है, फिर इंटरनेशनल पोर्ट जो है वहां से कारोबार करता है। याफा आज भी फलस्तीन में, इसराइल में, बहरा रोम के उस किनारे पे जहां से अरमतिया शहर को जाते हैं तकरीबन 40 माइल्स के फासले पर वकू में है, और वो मजहबी इमाजगाह है। मजहबी लोग उस शहर के रहने वाले अपने लिए फख्र महसूस करते थे, क्योंकि वो पूरे का पूरा शहर अरब था, वो गैर अरब नहीं था। वो अरबी भी बोलते थे, अरामी भी बोलते थे, और हिब्रू भी बोलते थे, और फिर वहां बहुत सारी नकूल भी तैयार की जाती थी। दरसो तदरीस का काम भी हुआ करता था, और फिर हुकूमत के कामों में मुहर्रर की सूरत भी ये फकीह रखते थे और फरीसी रखते थे। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जो फरीसी फिरका था और फकीह था, फरीसी फिरके की एक खास मशहूर वजह तस्निया यह है कि वो यहूदियों का एक मजहबी फिरका, ये लोग मूसा की शरीयत की बड़ी सख्ती से पाबंदी करते थे। फरीसी रस्मी या शरई तहारत यानी पाकीज़गी के क़वायद ज़वाबित पर भी खास तवज्जो देते थे। वो इन लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे, वो लोगों से मेल जोल नहीं रखते जो रवायात के निजाम पर अमल नहीं करते थे, ताकि दिखा सके कि मूसा की शरीयत पर खुश असलूबी से अमल कैसे करना है। उनके इक्तलादात में मुर्दों की क़यामत, उनके अकायद में ये शामिल थी, मुर्दों की क़यामत, फरिश्तों पर ईमान और मसीह मऊदा की आमद पर यकीन शामिल था। वो आकर दाऊद की सल्तनत और बनी इसराइल की अजमत को बहाल करेगा। इतने बड़े उनके थे, लेकिन वो ज़हनी तौर पे कबूल नहीं करते थे। उसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं, जब अमालिकियों के साथ जंग हो रही है, फिलिस्तीनियों के साथ जंग हो रही है, मूसा और यशवा अपने हाथ उठाए हुए हैं और वो लोगों को फाते होते जा रहे हैं। जो ही हाथ नीचे गिरते नुकसानात उठाना पड़ता। तो वो उस मसाया के पैरोकार होने की दाई थे। वो ये चाहते थे कि जब वो आएगा और आने के बाद हम जो मर्जी करते रहे, हम फातेहीन में जाएंगे और मफ्तूहीन को हम तेग कर देंगे, हम फाते कहलाएंगे। और इस जुल्म में वो मसीह खुदावंद को कबूल नहीं करते, लेकिन ये अंदर से निकोदेमस जो है उसको कबूल कर चुका है। और एक मरतबा इसने आके कैसा जुमला भी कहा, आए नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। मसीह खुदावंद ने उसको जवाब दिया, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं। वजह यह है कि तू शरा का आलिम है, मुअल्लिम है, फरीसी है, डंडे के जोर से लोगों को मजहब की तालीम का पैरों करने की कोशिश करता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि जब ये कहा जाए नेक उस्ताद मैं क्या करूं, नेक उस्ताद सिर्फ खुदा की जाते मुबारका के लिए ही अदा किए जाते थे। मुझे जाते मुबारका तो समझता है, मेरे लिए ये नेक का लफ्ज तो अदा करता है, खुदा तो मुझे तसव्वुर करता है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता, लोगों से डरता है। खौफ क्या है? उसके पीछे दो वजह थी। एक वही थी कि ये मसाया नहीं हो सकता, मसाया आता तो ये होता था। लेकिन सीधी सी बात है, मसीह खुदावंद ने जो काम किया कि भाई तुम तो यकजा काम कियाम बना के, अपनी कौम बना के, यूनिटी बना के लड़ झगड़ से भी इनसे मखलसी और रिहाई हासिल कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा एक गुनाह है, एक वो जुर्म है, एक वो शैतान है, एक वो लाइन है जिससे आपको मखलसी रिहाई नहीं मिल सकती। मैं उस मखलसी और रिहाई के लिए आपके लिए मुकर्रर हुआ हूं जिससे मैं देता हूं। लेकिन इसने बड़ा हौसला किया, डरते हुए पिलातूस से दरखास्त की, लेकिन उससे पहले यूसुफ लाश ले जा चुका था और फिर उसने उस कब्र में दफन किया। रिवायत यह बताती है कि वो उसने अपने लिए खदवा रखी थी, क्योंकि अमीर लोग हमेशा अमीर होते हैं, उनके लिए अच्छे कब्रिस्तानों में अच्छे मकाम। मैं यहां देखता हूं, हमारा गोरा कब्रिस्तान जो है उसके कुछ हिस्से बने हुए हैं कराची में। तो जो लोग असर रसूख रखते हैं
कब्रिस्तान की मैनेजमेंट से, वो अपनी पसंदीदा इलाके में कब्र ले लेते हैं, और जिनका नहीं होता उनको जहां वो दे देते हैं वो ले लेते हैं, असर रसूख नहीं है, लेकिन दफन तो उन्होंने करना है। लेकिन इसने जो लिया, इसने अपनी उस चीज को समझते हुए कि अपना फर्ज कुल्ली समझते हुए, क्योंकि इस जात को जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुई, इसको दफन करने के लिए कोई दूसरा शख्स नहीं आएगा। मजहबी है तो वो डरेगा, गरीब है तो वो डरेगा। तो अगर ऐसा ही है तो ये फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो 2 डाकू वो थे, तीसरे ये थे, इनको एक खड्डा खोद के उसमें फेंक देते, तज़हीक होती। सबसे बड़ी बात यह है कि मजहबी है, मजहबी शहर का रहने वाला है, यहूदी है, कट्टर यहूदी है, उस काउंसिल का मेंबर है, बाइख्तियार है, पावरफुल है, अमीर है, लेकिन उसने सारी चीजें उस औरत की तरह जो कुबली थी, मसीह खुदावंद को कबूल किया। क्योंकि कुबले आदमी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसकी कमर में जो कुब निकला होता है वो उसकी हमेशा नजरें जमीन पर लगी रहती है, क्योंकि सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसके आसमान की तरफ देख नहीं सकता। जो दूसरे लोग थे अपनी उस कमजोरी की वजह से कुबलेपन का शिकार थे, लेकिन ये कुबलेपन का शिकार नहीं है, लेकिन इसको खुदा ने बरकत दी। ये खुदा का इलाही इंतजाम था कि इस तरह उसकी तदफीन की जाए और फिर उसको वो कपड़ा पहनाया जाए जो अमीर तरीन लोग पहनते थे। गो उसको सजा तो एक मुर्तद के तौर पे दी गई, यसाया जिसको कहता है शक्ल ऐसी नहीं, लेकिन उसने जुरत की और उस जुरत में खुदा ने उसको बरकत बख्शी, खुदा ने उसको वो फजल बख्शा, खुदा ने वो काम उससे लिया कि अपने बेटे यीशु को जमीनी तौर पर उस तदफीन के मसले में लिया। अब तदफीन करने की जरूरत ही क्यों थी? उसकी वजह यह है कि मसीह खुदावंद ने पताल में जाना था। यही वादा डाकू से कहे तो आज ही मेरे साथ परदौस में होगा, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट सेंटेंस जो है ये हमारे उर्दू में सीगे हैं। सोनिया चंद्र के विस्का एक खातून है जो रूसी नसाद है, उसने उर्दू के सीगों पे काम किया। उसने कहा हाल माजी मुस्तकबिल सीगे हैं ही नहीं, सीगे सिर्फ 2 है, एक रियलस और एक इनरियलस, एक फेले तमाम और एक फेले ना तमाम। मसीह खुदावंद पताल में उतरकर कैदी लोगों को कलाम सुनाया, उनको आजाद किया। अगर उन गुनहगारों के साथ सलीब पे दिया गया, अगर उन्हीं के साथ तदफीन कर दिया जाता तो उनको भी वो साथ ले तो गया, उसको भी, दूसरे को भी। एक को तो कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और कैदी लोगों में कलाम किया, उनको ऊपर ले गया, अपने साथ ले गया। अब इससे एक और मसला खड़ा होता है कि भाई हमें कैसे पता चले कि कैदी लोगों को अपने पास ले गया? क्योंकि रिकॉर्ड ये बताता है कि मसीह खुदावंद का कफारा देने से पहले जितने भी लोग मरते थे वो पताल में जाते थे, और पताल पे कब्जा अबलीस का था। उस कब्जे को तोड़ने के लिए मसीह खुदावंद पहला पताल में गए। और ओल्ड टेस्टामेंट में हमें एक ऐसी चीज दिखाई देती है कि एक नबी की रूह को एक जादूगर कैसे जमीन से निकाल सकता है, और सैमुअल नबी वो जो ममसू था, क्योंकि कब्जा उसका था, उस कब्जे से वो उसको छुड़ा, जब जहां मर्जी ले जाता, लेकिन उस कब्जे से छुड़ाने के लिए पताल में जाना जरूरी था, उस प्रोसेस में से गुजरना जरूरी था। उस प्रोसेस में से गुजरे हुए सारे इंतजामात को करने के लिए खुदा के कलाम ने, खुदा के पाक रूह ने, खुदा के बंदों ने, खुदा के कलाम ने मुकद्दस यूसुफ को तोड़ा, जो उस शहर का था, जो यहूदी था, जो उसको कबूल नहीं करते थे, उनकी काउंसिल का मेंबर था, उसको खुदा ने खड़ा कर दिया। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, ताकि वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, इल्म इलाहियात के माहिरीन तो ये कहते हैं कि ये क्लोज्ड कैनन है, फरिश्ते मुसलमा का हतमी फैसला है। जिस कर बनी नो इंसान को खुदा के इलाही मुकाशफा की जरूरत थी वो खुदावंद ने दे दिया। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि आज भी ये बुक जो है वो ओपन है, इसमें मैं और आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट इज द नेम ऑफ द बुक, द एक्ट, अमाल की किताब। हम अपने करैक्टर से, अपनी उस मोहब्बत से, अपने उस ईमान की पुख्तगी से, पाक रूह की
कुव्वत और कुदरत के वसीला से आज भी हम बुक ऑफ एक्ट में अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरा, हम अक्सर कहते हैं कि अनाजील 4 है, मैं कहता हूं अनाजील 4 नहीं, अंजीलें 5 हैं। 4 अनाजील अरबा तो वो है जो रिकॉर्ड की गई, और 5वीं अंजील मैं और आप चलते फिरते हुए, अगर इस चलती फिरती अंजील में से अंजील दिखाई देगी, मसीह दिखाई देगा, तो उन 4 अनाजील की तरफ लोग रागब होंगे। इस शख्स ने जो मजहबी है, यहूदी है, काउंसिल का मेंबर है, किसी चीज को खातिर में नहीं लाया, लेकिन उस प्यार में उस मुकद्दस हस्ती को, उस जात को, उस खुदा को जो मुजस्सम हुआ, जिसने तकलीफ उठाई, जिसने दुख उठाया, जो दफनाया गया, कब्र में से जिंदा हुआ। और फिर एक और बहुत बड़ा फलसफा है, जितने भी लोग मरे जो मसीह खुदावंद ने जिनको जिंदा किया, उनके पास खारजी कुव्वत थी। मसीह खुदावंद थे, उनको जिंदा करते, यायर की बेटी को, नाइन शैन के बेवा के बच्चे को, लाजर को, और इनको तो जिंदा करने वाली कुव्वत मौजूद थी। और आप आज खुद, क्योंकि जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, कुंजियां मेरे पास है, सारा इख्तियार मेरे बाप ने मुझे दिया है, मैं जिस, और वो इख्तियार उसने मुझे और आपको भी सौंपा है कि जमीन पर जिसको बांधोगे वो बांधा जाएगा, और जिसको खोलोगे वो खोला जाएगा। और ये करैक्टर हमें उसी सूरत में मिल सकता है जब हम उसके कदमों में झुक जाते हैं, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, खाली कर देते हैं। जब हम खाली कर देते हैं तो नई कुव्वत, नई जिद्दत, नई कुव्वत, नई ताकत, नई रूह, नए जज्बे, नई रूह अल कुद्स के साथ हमें फुलफिल करके अपने नाम को जलाल बख्शता है। तो मुकद्दस यूसुफ ने जब मसीह खुदावन की लाश ली, दफन किया, और जब जिंदा हुए, लाजर को आवाज दी, वो कब्र से कफन समेत बाहर आया, और यीशु मसीह कफन छोड़ के आया। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। जिंदा हुए हैं, कफन कब्र में छोड़ आए। और आज भी आर्कियोलॉजिस्टों ने, अगर यरूशलेम में हम जाते हैं, फलस्तीन में जाते हैं, इजराइल के मुल्क में जाते हैं, तो वहां जो गाइड्स हैं वो बताते हैं, बकायदा उस कब्र को दिखाते हैं कि यहां यीशु को रखा गया था। वो आज भी खाली है और मौत का मुंह चढ़ा रही है। मौत को मौत के घाट उतार देने वाली जाते मुकद्दस वो है, और उस जाते मुकद्दस को दुनवी तौर पर कफन पहनाने के लिए खुदा ने अपने बंदा यूसुफ को, जो अरमितिया शहर का रहने वाला था, उसको चुना, उसको ये फजीलत बख्शी, उसको ये हक बख्शा, उसको ये मौका फराहम किया। लेकिन आज मैं और आप भी इस मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। उसको मानने के बाद, उसको कबूल करने के बाद। अक्सर मैंने लोगों को से सुना, वो कहते ओ जीसस आई लव यू। तो मैं कभी कभी नाराजगी का इजहार भी कर देता हूं। मैंने कहा भाई ये गलत बात है जो आप कहते हैं जीसस आई लव यू। ये वो लोग क्लेम कर सकते हैं जो ये कहें, फर्स्ट जीसस की बात को सुनना, दूसरा लिसन जीसस, ओबे जीसस, and then third Jesus, they can claim that I love Jesus. विशफुल थिंकिंग नहीं, विशफुल थिंकिंग उसकी भी थी, लव करता था, डरता था। यूसुफ डरा नहीं, उसका क्लेम राइट है, आई लव जीसस। मौत से नहीं डरा, अपने उस ओहदे से नहीं डरा, यहूदी काउंसिल से नहीं डरा कि मुझ पे को फतवा सादर कर देंगे। पॉसिबिलिटी थी, लेकिन खुदा ने उसको जुर्रत बख्शी, उसको हिम्मत बख्शी। ये खुदा का इलाही इंतजाम था कि वो उस इंतजाम में उस बंदा को भी इस्तेमाल करता। और मसीह खुदावंद ने इन दोनों फिरकों के बारे में, जो फकी और फरीसी थे, मैं इनकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहती हूं कि फरीसी क्या थे। फरीसी यहूदियों का एक मजहबी फिरका, ये लोग मूसा की शरीयत की बड़ी सख्ती से पाबंदी करते थे। फरीसी रस्मी या शरई तहारत यानी पाकीज़गी के कायदो ज़वाबत पर खास तवज्जो देते थे। वो लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते थे,
जो रवायात के निजाम पर अमल नहीं करते थे, ताकि दिखा सके कि मूसा की शरीयत पर खुश असलूबी से अमल कैसे करना है। उनके इख्तिलात में मुर्दों की क़यामत और फरिश्तों पर ईमान और मसीह माऊद की आमद पर यकीन शामिल था कि वो आकर दाऊद की सल्तनत और बनी इसराइल की अजमत को बहाल करेगा। ये थोड़ा सा तारफ है फरीसियों का। आगे फकी, ये फिक्का के बाहर लोग थे, यहूदी उलमा की एक जमात थी जो बतौर पेशा शरीयत का बाकायदा मुताला और उसकी तशरीह और तफसीर किया करते थे। नए अहदनामा में उन्हें आमतौर पर फकीया कहा गया है, जो इब्रानी लफ्ज सुफरलीमिया का हम मायनी लफ्ज है, यानी आलम शरा या मोल्लम जिसे कहते हैं। और ये क्लेम करते थे और अपने क्लेम में ये हक बजानब थे। आज अगर दुनिया में ओल्ड टेस्टामेंट की जिल्दें मौजूद हैं तो ये फकी जो फिरका है उसकी मरहूने मिलनत है जो हमारे पास है, अगर उनकी ये मेहनतों का सिला है। जबकि फकीया उहदेदार भी थे, वो फकीयों की अक्सरी फरीसी जमात से तल्लक रखते थे और उनकी तफसीरों को कबूल करते थे। मरकज 2 बाब की 16 आयत को देखें, यूहन्ना 5 बाब की 20 आयत को देखें। फकी आमतौर पर मुहर्रर, हुकूमत के सेक्रेटरी और शरीयत यानी किताब मुकद्दस और दस्तावेज की नकूल और नवीसी का काम किया करते थे। यह उनका मुकद्दस फरीजा था। लेकिन उनके अंदर कीना और जो बुग़्ज़ भरा हुआ था, मसीह खुदावंद अपनी हयात और अपनी तबलीग में और अपनी हयात में जिंदगी में एक ऐसे इबादत खाना में गए जो खराजीन के इलाके का इबादत खाना था। उस इबादत खाना में जब गए तो वहां ये कई लोग जो थे मसनदों पर बैठ के तालीम देते और ये क्लेम करते थे कि अगर दुनिया आज खुदा के कलाम मुकद्दस को जानती है तो वो हमारी वजह से, हमारी मरहून मिन्नत है। अगर हम ना होते तो दुनिया की कौमें, उम्मतें और कबीले कलाम मुकद्दस से बेबहरा होते। और मसीह खुदावंद ने उनके सख्त दिली और वो कानूनी जवाब जो उन्होंने पैदा किए हुए थे उसके अगेंस्ट मसीह खुदावंद का चेन रिएक्शन है। और मसीह खुदावंद ने कहा ये फकी और फरीसी जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मत्ती के अंजीली बयान की 23वीं आयत में ये पूरी प्रेम कहानी लिखी है कि वो क्या क्या करते थे, वो किस तरह के लोग थे। लेकिन उनका क्लेम ये था और वो अपने क्लेम में हक बजानब भी थे। और मूसा की गद्दी की जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो मैंने एक डिक्शनरी में खराजीन के इलाके को देखा तो आर्कियोलॉजिस्टों ने, जिसके 2 बड़े मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ब्लिकलॉक एंड प्रोफेसर आर.के. हैरिसन, उनकी एक बिब्लिकल आर्कियोलॉजिकल डिक्शनरी है जिसका नाम है द न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द बिब्लिकल आर्कियोलॉजी, जिसके ये दोनों शख्स मुसन्नफ है, प्रोफेसर ब्लिकलॉक एंड आर.के. हैरिसन। उस डिक्शनरी के सफा नंबर 83 पर उस ब्लैक से पत्थर की बनी हुई वो कुर्सी है जिस पर यहूदा बिन इस्माइल का नाम लिखा है। और यहूदा बिन इस्माइल वो शख्स था जिसने खराजीन के इलाके की उस इबादत गाह को बनाने के लिए अपने मादी वसाइल को बरूए कार लाया और उसकी तमीर करवाई। और ये लोग उस पर बैठकर तालीम देते थे और क्लेम करते थे। और मसीह खुदा ने इशारा करके इंडिकेट किया ये फकी और फरीसी जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। आज कहीं हमारे साथ भी मसीह खुदावंद की वो फिंगर आउट तो नहीं हम होते? अगर होते हैं तो हम अपनी अपनी जिंदगी का जायजा ले सकते हैं। और फिर 3 अनाजील जो है, जिन्हें अंजीले अरबा चौथी को डाल दे तो अंजीले अरबा कहा जाता है, लेकिन 3 अनाजील, मुकद्दस मत्ती की अंजील, मुकद्दस मरकस की अंजील और मुकद्दस लूका की अंजील, इसे सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहा जाता है। से चश्मी तहरीर। और चौथी यूहन्ना की अंजील है। इसका यूहन्ना के अंजीली बयान में
दूसरों से हर चीज डिफरेंट है, लेकिन इनका तरीका कार क्या है? मसीह खुदावंद की जमीनी खिदमत के मुताबिक अंजीली तरतीब बड़ी खूबसूरत है। मुकद्दस मत्ती को बतौर बादशाह पेश करता है, मुकद्दस मरकस मसीह खुदावंद की जाते मुबारका को खादम पेश करता है, और मुकद्दस लूका इब्ने इंसान पेश करता है, और यूहन्ना इब्ने खुदा पेश करता है। वो खुदा का बेटा है, और इस बात में यूसुफ ने ये फख्र महसूस किया कि खुदा के बेटे की जमीनी तौर पर, दुनियावी तौर पर उस मौत के वसीला से, कफन और दफन के वसीला से जो मुझे फरीजा मैं समझता हूं, ताकि मैं भी इस बुक ऑफ एक्ट का हिस्सा बन जाऊं जिसकी आज हम बातचीत कर रहे हैं। और वो एक ऐसे शहर पे, और इंसानी तारीख ये बयान करती है कि हमेशा जो साहले समुद्र पर वाक़े शहर, कस्बे और गांव होते हैं, वो जिनसी, जिस्मानी और अखलाकी गिरावट का शिकार होते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लोग आते जाते और अपना अकीदे, अपना सोच, अपना फिक्र, अपना लिबास वहां छोड़ देते हैं, जिसकी वजह जिनसी, जिस्मानी और अखलाकी गिरावट का शिकार होते हैं। ये शख्स यहूदी है, साहली पट्टी पर रहता है, याफा बंदरगाह के नजदीक है, अरबितिया शहर का नाम है, मजहबी शहर है, उसका रहने वाला है। उसका रहने वाला होने के बावजूद इसके अंदर वो साहिल की कोई ऐसी बात नहीं। उसने कहा ये इब्ने खुदा है, खुदा का बेटा है, तो ये नहीं करते तो मुझे ये खुदा ने फजल बख्शा है। अपनी दौलत के वसीला से, हिकमत के वसीला से, मेंबर होने के वसीला से, अथॉरिटी होने के वसीला से मैं और कुछ नहीं कर सका, तबलीग नहीं कर सका, मैं उसका खुफिया दोस्त हूं, लेकिन उसकी तदफीद और तदहीन के तल्लक से, कफन दफन के तल्लक से मैं अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करूं। अगर मैं नहीं करता तो दूसरा कोई भी जो है वो डर से, खौफ से नहीं आएगा, और इसको वो खड्डा खोद के उन 2 डाकुओं के साथ उस खड्डे में डाल के मिट्टी डाल दी जाएगी। जो तज़हीक होगी, खुदा तज़हीक नहीं चाहता, लेकिन खुदा ऐसे वसाइल पैदा करता है कि उन चीज की क्वालिटी, उसकी अथॉरिटी जाहिर हो। हमेशा पौलुस कहता है उसने बेवकूफ और नकम्मों को चुन लिया ताकि अक्लमंदों की अक्लों को रद्द करें। बहुत सारे आकल और दना, फकीह और फरीसी, शरअ के आलम, मुअल्लिम वहां मौजूद थे, लेकिन खुदा ने यह फजल इस शख्स को बख्शा, और जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, और आज वो रिकॉर्ड में है। मुकद्दस मत्ती जो है, क्योंकि वो मसीह खुदावंद को सिर्फ बादशाह की हैसियत से देखता है, उसके पीछे उसके प्रोफेशन का कारफरमा होना बहुत लाजमी है। वो जो अपने प्रोफेशन में देखता है कि वो मुहस्सिन है, टैक्स कलेक्टर है, और ये टैक्स लेने वाला जो है, ये उसको कहता है कि टैक्स हमेशा बादशाहों को दिया जाता है, लिहाजा ये टैक्स जो है मैं यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करता हूं कि ये टैक्स का हकदार सिर्फ वो है और कोई नहीं। मुकद्दस मरकज इसका बैकग्राउंड क्योंकि आर्मेड फोर्सेस से था, तो वो मसीह खुदावंद को बतौर खादम पेश करता है। उसका मेटाफर भी ये है, जब कोई भी बात वो करता है फिल फॉर का मेटाफर इस्तेमाल करता है। तो फिल फॉर जो है देयर एंड देन, आर्मेड फोर्सेस में ऐसा होता है जब कमांडर आटा देता है, ऑर्डर देता है, तो उसी ऑर्डर को विद इन अ फ्यू सेकंड्स ओबे किया जाता है और तड़तड़ हो जाती है। मुकद्दस लूका ही वाज द डॉक्टर, और डॉक्टर होने के नाते से इसके तमाम मेटाफर डिफरेंट नजर आते हैं। ये वक्त हमल का जिक्र करता है, देश का जिक्र करता है, गैंठिए का जिक्र करता है, टखनों का मजबूत होने का जिक्र करता है, बीमारियों का जिक्र करता है। तो ये अपने प्रोफेशन में डॉक्टर है, और यहां तक इतना बड़ा डॉक्टर है कि कहता है मेरी दानिश में जिस शख्स पर सलीब पर इतने जुल्म किया गया हो, जिस्म को इतना छलनी कर दिया जाए, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लिहाजा ये इन सब ने इंसान है, ऐसा इंसान है, इंसानियत की खिदमत कर रहा है, अपना ख्याल नहीं करता, दूसरों के लिए खिदमत कर रहा है, और इसकी खिदमत के पीछे खुदा कार फरमा है। उसने कहा कि मैं एक फरिश्ते को देखता हूं जो उसको तकवीयत बख्श रहा है, और मुकद्दस यूहन्ना उसे इब्ने खुदा कहता है कि ये खुदा है, इसलिए कि इसकी सारी फिलोसफी, मैं असल में यूहन्ना को कहता हूं ये सूफी अज़म का आदमी है। इसने कोना पकड़ा हुआ है, और कोने को पकड़ के
वो कहता है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, जो इकलौता बेटा उसकी गोद में उसने उसको जाहिर किया। इसका और टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये सूफीइज्म का आदमी है, इसलिए इसने यूसुफ की जो डिटेलिंग है डिफरेंट की है दूसरे तीनों से। तीनों अनाजील में, चारों अनाजील में यह वाकया है, लेकिन जो 3 अनाजील है जिन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहा जाता है, उनकी डिटेलिंग मुख्तलिफ है और इसकी डिटेल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये उसको बादशाह मानता नहीं है, ये उसको खादिम नहीं मानता, इब्ने इंसान नहीं मानता, ये खुदा जानता है। और खुदा जानते हुए वो खुदा के साथ जो उसकी सिफात जुड़ी हुई है और उसकी खिदमत करने वाले जो है वो भी जब उस सिफात से इस्तिफादा नहीं करते तो उसकी खिदमत नहीं कर सकते। ये उसने उसकी इब्ने खुदा होने की सिफ्त को मुकद्दस यूसुफ जो अरमितिया का रहने वाला था, शहर का रहने वाला है, जो इतने बड़े मजहबी उलमा दीन में वो बज़म में रहते हुए इतना बड़ा ओहदा रखते हुए शर्माते भी हैं। मेरा मुल्क पाकिस्तान में बड़ा तजर्बा, हमें किसी चीज का पता भी हो, अगर हमें से कोई गैर ईमानदार कोई बात पूछ ले तो हम डर के मारे नहीं बताते। मैंने बाज ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो अपना नाम इतनी जल्दी नहीं बताते, अगर उनसे पूछे भी तो वो थोड़ा आए बाएं शाएं करके ना अपने आप को टाल जाते हैं, लेकिन इसने ये नहीं किया। शरा का आलम जो है, जो आता है बहुत बातें करता रहा, उसने भी कोशिश तो की लेकिन उसको वो मौका नहीं मिला। उस मौका ना मिलने के पीछे क्या है? मसीह खुदावंद की वही बात है, ये फकीह और फरीसी जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, ना ये खुद दाखिल होते हैं ना दूसरों को दाखिल होने देते हैं, और क्लेम इनका यह है कि हम मूसा की शरीयत के अमीन हैं। अगर लोग मूसा की तालीम को जानते हैं तो वो वाहिद हम हैं, हम वो आईना है, हम वो लोग हैं जिन्होंने नकूल तैयार की, फरिश्ते तैयार की, जो डंडे के जोर पर लोगों को इस तरफ रागब करते रहे। लेकिन बाइबल का खुदा जो है वो डंडे के जोर से नहीं, वो हमें फ्री लांस उसने किया हुआ है। और साथ ये जुमला का है, देख एक दिन तू खुदा के हजूर दाखिल होगा, उस वक्त तेरी कंडीशन क्या हो, उस वक्त तू क्या जवाब देगा। और जब उस वक्त तू जवाब देगा तो तेरे पास जवाब कोई नहीं होगा, उस वक्त भेड़ों और बकरियों वाली बात की जाएगी। तो आज हमारे पास मौका है, जब तक हम जिंदा हैं हम कफन को साथ लेकर ना घूमें। हमारे आका ने, मौला ने, मालिक ने उस कफन को उस कब्र में छोड़ दिया। वो कफन उस डर और खौफ का था जिसमें उसको बंद कर दिया जाता है। पालूस अपने ग्रंथियों के खत में कहता है, मौत तेरा डंग कहां रहा, मौत फतह का लुकमा बन गई। उसने हमें फातिहीन में शामिल कर दिया, सारे डर और खौफ को निकाल दिया। मुझे याद है एक मतलब मेरे साथ एक जगह पे ऐसा वाकया हुआ, उन्होंने कहा जी हम आपको शूट कर देंगे। मैं सो व्हाट, मैं अगर आप मुझे शूट भी कर देते हैं तो मेरे लिए शहादत हेज है। इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है कि मैं उसका नाम लेते हुए मारा जाऊं। लेकिन एक बात और भी है, हम ये फख्र ना करें कि हम उसके नाम पे मारे जाएं। फख्र ये होना चाहिए कि हम उसका पैगाम दुनिया के कोने तक पहुंचाते रहे, वो हमारे साथ है। उसने मत्ती की अंजीली बयान में कहा, जाओ और सारी कौमों को, सारी खलक के सामने, मरकज कहता है, लूका कहता है, सारे कहते हैं, मुनादी करो और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्म करो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। लोग तुम्हें जगह जगह लेके जाएंगे, लेकिन मेरा पाक रूह तुम्हारी जबान बताएगा, तुम्हारा इल्म खोलेगा, तुम्हारे ज़हनी तौर पे तुम्हें जवाब देने की कुव्वत बख्शेगा, हौसला बख्शेगा। और उस हौसले के लिए इंसान को अपने अंदर भी हौसला रखने की जरूरत है। और ये हौसला मैंने एक और शख्स में देखा, उन 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी को, क्योंकि जब वो कोड़ में थे तो किसी की मजहबी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जो ही बीमारी चली गई तो उनको उस वक्त याद आया ये तो सामरी है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो तो काहिनों के पास जाकर दिखा के सर्टिफाई लेके फिर सरवाइव करेंगे। मैं उसके पास जाऊं जिसकी जाते मुबारका में ये क्वालिटी है कि किसी का जुर्म, किसी का गुनाह, किसी की बीमारी उस पर असर पजीर नहीं होती, बल्कि उसकी अथॉरिटी, उसकी कुव्वत इस कदर कुव्वत रखती है कि उसकी सारी बीमारी, दुख, रोग को दूर करके चली जाती है। तो ये बातें
जब अरमितिया के यूसुफ के जहन में थी, मजहबी होते हुए ओल्ड टेस्टामेंट की रिसर्च भी उसके पास थी, मसीह खुदावंद की तालीम भी सुनता था, खुफिया दोस्त भी था। हो सकता है वो ना मीटिंग्स में जाता हो, बैठता ना हो, लेकिन वो सुनता होगा, बेस बदल के सुनता होगा, किसी भी तरीके से सुनता होगा, नोबडी नोज। लेकिन एक बात पक्की है कि उसके शागिर्द होने की, उसका सही, उसका बंदा होने की, उसका सहाबी होने की उसने दलील वो दी जो दूसरा काम नहीं को कर सके, जिनमें अखलाक की जरूरत नहीं थी कि बादशाह के सामने जाके पेश होकर वो लाश ले। उसने जरूरत के साथ जाके लाश मिली, उसको दफन भी किया, उस पर उसने सारा खर्चा भी किया, और सबसे बढ़कर उस दौर का सबसे कीमती कपड़ा उस जस्ते खाकी को पहनाया, जिस वजह से आज मैं और आप ये फख्र महसूस कर सकते हैं कि हम इस काबिल तो हुए कि हमारी ये सरजमीन ने मसीह खुदावंद के उस जस्ते खाकी को कफन दफन के लिए उस सेंडोन्स कपड़े को दिया। और वो सेंडोन्स कपड़ा, सिंधी कपड़ा, जो बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा था। और हम मूसा की गद्दी के अमीन अपने आप को ना कहते रहे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मेरे घर में एक दिन एक प्रीस्ट आ गया सुबह सुबह, तो आके मुझे कहने लगा, सलाम भाई जी। मैं सलाम जी। कहता भाई जी मैंने हैदराबाद मनादी से जाना, तो खुदा ने राती मैंने कहा तुम गुलनाज साहब के घर जाओ, तो उन्होंने कहो जाके 2000 रुपया तुम देगा मनादी को। मैं यार मैं ऐसे खुदा नहीं मानता, जब मेरी जेब खाली करा रहे तो 10 तेनू रहा होवे, उस खुदा मेरे नाल गल करन लगा कोई परेशानी सी। और मैनू कहता मैं अपनी मोटरसाइकिल कढ़दा, तेन लभदा, तेन ढूंढदा, तेरे घर जाता, तेन 2 की जगह 3 दे के आंदा कि मेरे खुदा ने, मेरे माका ने, मेरे मालिक ने, मेरे उस्ताद ने, मेरे रब्बी ने मैनू एक किया है, तो मैं तेन देंदा। तो मैं इहो जिहा झूठ ना बोलो, अगे तो तुहानू मैं उंज कुछ चंदा देना, तेन मैं चंदा भी नहीं देंदा, इसलिए कि तुसी गलत तालीम देंदे हो। और हमें इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। और मैंने ये समझा कि कुछ मुकद्दस यूसुफ जो अरमितिया शहर का रहने वाला है, उसका मोहल्ले वकू, उसकी बात और फकी और फरिश्तियों पे भी बात की जाए कि ये क्या थे। तो मैंने अपनी कमजोरी की हालत में जो कुछ भी मुझे समझ में आया, जो मुझे हिकमत मिली, मेरा जितना जहन खुला मैंने आपके दरमियान रखा। और मुझे यकीन है, यकीनन आप में मेरी काफी सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन फिर भी इस सारे मोहल्ले वकू को जानने के लिए बाइबलों के पीछे नक्शाजात बने हुए हैं। उन नक्शाजात में ये देखिएगा तो बकायदा बहर रोम के ऊपर जो जो साहिली शहर हैं, जो बंदरगाहें हैं, उन पे ब्लैक डॉट लगे हुए हैं और उनके नाम भी है। और वो नाम आज भी है, उस वक्त भी फलस्तीन में थे, आज भी वो नाम वही है। आज भी वो याफा की बंदरगाह फलस्तीन जो इलाका है जो इसराइल के कब्जे में है, और वहां से उनका ट्रेड होता है, वहां से उनकी समुद्र की सारी, और उसी के नजदीक से उन्होंने साल्ट वाटर को स्वीट वाटर में कन्वर्ट किया। और जिस शख्स ने स्वीट वाटर में कन्वर्ट किया उसका नाम था उसने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी दी, मिस्टर वाइसमैन। मिस्टर वाइसमैन ने वही इसी बहरे रोम से सॉल्ट वाटर को स्वीट वाटर में कन्वर्ट करके पूरे फलस्तीन, पूरे इजराइल में उसको डिस्ट्रीब्यूशन दी, जिसकी वजह से आज वो इतने सरसब्ज और दुनिया की कोई भी मुल्क होगा पानी से परेशान होगा, लेकिन उनको कभी पानी से परेशान नहीं। उनका सिस्टम इतना खूबसूरत है, एग्रीकल्चर का इकोलॉजी के मुताबिक वो इतने स्ट्रॉन्ग है, उस इकोलॉजी को समझते हैं, वो उस सारे सिस्टम को समझते हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम को समझते हैं कि उनके अंदर उन्हें इतना ऑटोमेटिक सिस्टम कंप्यूटराइज किया हुआ है कि जिस पौधे को डेली जितना पानी चाहिए, जिस फसल को जितना पानी जब चाहिए, उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली उनका पूरा हो जाता है। और वो स्वीट वाटर में जब उसको कन्वर्ट किया तो जितने उसके केमिकल थे, नमकियात थे, उनको पूरी दुनिया में उसने डिस्ट्रीब्यूट करके वहां से भी पैसा कमाया। तो बाइबल का खुदा हमारे जहनों को छूता है, और यकीनन मुझे खुदा ने छुआ। मैंने इस पर जितनी भी मुझ में हिकमत थी, खुदादात सलाहियत थी, उसके मुताबिक मैंने अंजीली बयानात को भी, मसीह खुदावंद के प्रेम कहानी को, मसीह खुदावंद के लोगों को बयान किया। और बाद लोग ये भी कहते हैं कि बागे गतसमनी जो है ना, रवायत ये बताती है कि इसका ऑनर जो था ये अरमितिया शहर का रहने वाला यूसुफ ही था, और ये मसीह खुदावंद का सीक्रेट फ्रेंड था, और उसकी चाबी इन्हीं के पास होती थी। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। पाक और रहीम खुदा, मैंने जितनी बातें अपनी कमजोरी की हालत में तेरे सामने की हैं, इनको कबूल फरमा, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरी इस्लाह कर, ताकि मैं और ज्यादा गहरे में जाकर तेरे
मुकाशवा को, तेरी इन बातों को, तेरी रिवायात को, तेरे इस कलाम को, तेरे कलाम की इन बातों को सीखूं, अमल करूं और इसकी गवाही देने का सबब और वसीला बनूं। जितने लोगों ने इस कलाम को आज सुबह, आज शाम मुख्तलिफ ममालिक में सुना है, उसकी वजह से इनको बरकत दे और वो तुझ में बढ़े। तेरा फजल, तेरा कवी हाथ, तेरा कुदरत वाला हाथ उन पर, उनके घरानों पर बड़ा रहे और वो बरकत पाए। मसीह खुदावंद के वसीला से एक बार फिर मैं सारे सेटअप के लिए, इस पूरी टीम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि जो इस दौर में, ऐसे हालात में अरशाद आदम की तकमील के सरगर्दा हैं, कोशिश कर रहे हैं और पैगाम को फैला रहे हैं, इनको और ज्यादा गहरे में ले चल, इनकी मदद फरमा। व्याधि खिलाना से जिस कदर खुदावंद तू मदद करता है, और आने वाले दिनों, सालों और महीनों में और ज्यादा इस टीम को बढ़ा, और ज्यादा इनको लोग दे, ताकि ये तेरे नाम को जलाल देने का और सारा जलाल तुझे पहुंचे। मसीह खुदावंद के वसीला से दुआ और मिन्नत को सुन और कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।